Assalamualaikum students. Today we are going to discuss about the molecular rearrangements. Molecular rearrangements जो है ये basically it's a topic of the reactive intermediates course named as. In this topic we will discuss about what are the molecular rearrangements, why the molecule tend to become rearranged themselves, what's the reason behind this phenomena, as well as with the help of some examples we can discuss about the molecular rearrangements. So let's have a look on the first slide. Introduction basically tell us about what are the molecular rearrangements. Rearrangement reaction involve the migration of a group or an atom from one center to another within the same molecule. एक ही बड़े जांट मॉलिक्यूल के अंदर अगर एक ग्रुप जो है वो अपनी जगह से जो है वो माइग्रेट कर रहा है, लेट्स सपोज ये जो ग्रुप ए है, ठीक है, इसको हम नाम दे रहे हैं माइग्रेटिंग ग्रुप का. जिस ग्रुप के साथ ये अटैच है उसे हम कह रहे हैं माइग्रेटिंग ओरिजिन जहाँ से कोई भी चीज़ स्टार्ट हो रही है, जहाँ से कोई भी चीज़ मूव कर रही है. एंड द थर्ड सी एटम और सी मोलेक्यूल शो द group or site on which this group will attach. So this form shows that how the rearrangement occurs. In this definition we just only discuss about the rearrangement होती क्या है, ठीक है, और इसमें जो ग्रुप जहाँ से मूव कर रहा है उस प्लेस का क्या नाम है और जहाँ तक मूव कर रहा है उस प्लेस का क्या नाम है. Example. Let's have a look on the example of the rearrangement reactions, the famous Beckmann rearrangement. In this rearrangement, you can see that the number of the atoms remain same. In all of the rearrangements other than Beckmann rearrangement, the number of atoms remain same. Only the change in the structure or the position of the atom is discussed. So here, from ketoxime to amide, you can see that this nitrogen change its position from here and come between this carbon and the R2 group, that is an alkyl group. This R1 and R2 may be same or can be different, ठीक है. So this one rearrangement is known as the Beckmann rearrangement. यहाँ पे एसिड जो है वो आपका एक कैटलिस्ट के तौर पे एक्ट करता है और जो रिएक्शन के ख़त्म होने के बाद एज इट इज़ निकल जाता है, ठीक है. Reason why a molecule tend to be rearranged itself. The rearrangement occur because the resulting structure is energetically more favorable. तो हमें पता है कि लेट्स सपोज हमारे पास, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं, कि अगर एक कार्बोकेटाइन है जो कि सेकेंडरी है, व्हाट डज सेकेंडरी रिप्रेजेंट, कि अगर वो कार्बन जो है वो मज़ीद 2 कार्बन के साथ अटैच है, और टर्शरी कार्बोकेटाइन है जिसमें वो एक कार्बन मज़ीद 3 कार्बन के साथ अटैच है. तो टर्शरी कार्बोकेटाइन सेकेंडरी से ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि टर्शरी में तीनों तरफ से अल्काइल ग्रुप जो है वो उसे डोनेट कर रहा है, जबकि सेकेंडरी कार्बोकेटाइन में ओनली 2 तरफा जो है वो उसको डोनेशन मिल रही है. तो द रीअरेंजमेंट अकर्स बिकॉज द रिजल्टिंग स्ट्रक्चर इज एनर्जेटिकली मोर फेवरेबल. द शिफ्ट फ्रॉम अ लेस स्टेबल इंटरमीडिएट टू अ फॉर्म to more stable one is driven by the principle of minimizing energy, ensuring that the molecule reaches its most stable configuration to proceed with the reaction. ठीक है, तो वो सिर्फ अपनी एनर्जी को लो करने के लिए, लो एनर्जी जो है वो ज़्यादा स्टेबल है, हमें अच्छी तरह से पता है. बेसिक टाइप्स. मोलेकुलर रीअरेंजमेंट की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं? इंट्रामोलेकुलर रीअरेंजमेंट्स एंड इंट्रामोलेकुलर रीअरेंजमेंट. इंटरमोलेकुलर रीअरेंजमेंट में क्या फिनोमेना होता है कि माइग्रेटिंग ग्रुप जो कि माइग्रेट कर रहा है, फर्स्ट डीटैच एंड लेटर रीअटैच एट अनदर साइड. अब वो एक जगह से जो है पहले तो कम्प्लीटली डीटैच हो जाएगा, एक जो है वो इंटरमीडिएट है, यू कैन से ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, डिपेंड करता है वो स्टेबल है या नहीं स्टेबल. ये 2 तरह के सिस्टम में होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सिस्टम है या इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम है. Intramolecular group which migrate does not become completely detached from the system in which rearrangement is occurring. अब वो उससे completely detached नहीं हो रहा. Basically intramolecular में जो transition state होती है जिसमें let's suppose हमारे पास एक reaction है जिसे हम कहते हैं Simon-Smith reaction. I could not explain here, but in the upcoming slides you will see a example that is showing that how a rearrangement can be intra and intra both. Simon-Smith reaction में क्या होता है, एक्टिव मेथिलीन जो है वो अल्कीन के ऊपर या यू कैन से अनसैचुरेटेड कंपाउंड के ऊपर अटैच होती है और दोनों साइड से अपना बॉन्ड बना लेती है.
इन मोलेकुलर रीअरेंजमेंट, एक ही रीअरेंजमेंट रिएक्शन जो है वो दो तरह से हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी हुई है क्लेजियन रीअरेंजमेंट की। क्लेजियन रीअरेंजमेंट एक एस्टर से, यानी कि अनसैचुरेटेड एस्टर से जो है वो हाइड्रोक्सल ग्रुप में कन्वर्ट हो रहा है। सॉरी, एस्टर नहीं, ईथर से, सॉरी, ईथर से जो है वो है हाइड्रोक्सल ग्रुप में चेंज हो रहा है। तो इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या फिनोमेना है, वो हम देख लेते हैं यहाँ पे। इंट्रामोलेकुलर रीअरेंजमेंट, इंट्रामोलेकुलर रीअरेंजमेंट क्या हो रहा है कि ये जो आपको बॉन्ड नज़र आ रहा है पाई बॉन्ड, ये यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, इस कार्बन से इस कार्बन में। और ये जो ऑक्सीजन के इस साइड वाला बॉन्ड है, ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना लेगा। अब ये जिस कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ था वो अपना बॉन्ड इस कार्बन के साथ ही रखेगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि ये और ये कार्बन आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे, तो इसकी कन्फिग्रेशन पूरी हो जाएगी। अब ये सारा ग्रुप यहाँ से डिटैच होगा और अभी मैंने आपको बताया कि ये वाला पाई बॉन्ड क्योंकि इस कार्बन और इस कार्बन के दरम्यान में आ रहा है, तो वो बेसिकली इंट्रामोलेकुलर जो है ये एक सिग्मा ट्रॉपिक है, जिसमें पाई बॉन्ड एक सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये एक जो है इंटरमीडिएट स्टेट बन गई। अब यहाँ से इंटरमीडिएट स्टेट से आगे आपकी होगी प्रोटोनेशन होगी। प्रोटोनेशन के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोक्सल ग्रुप। ठीक है, ये होगी इंट्रामोलेकुलर मैकेनिज्म। उसके बाद है इंटरमोलेकुलर मैकेनिज्म। इंटरमोलेकुलर मैकेनिज्म में ऑक्सीजन के साथ वाला सारा ग्रुप कम्प्लीटली डिटैच हो रहा है। इंटरमोलेकुलर में एक ग्रुप जो है वो कम्प्लीटली डिटैच होता है, देन वो रिटैच होता है उसी सिस्टम में, लेकिन एक डिफरेंट पोजीशन पे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहले ये इस पोजीशन पे था ऑक्सीजन के साथ, अब वो ऑक्सीजन से उतर के यहाँ पे इसके साथ वाली हाइड्रोक्सल ग्रुप के साथ वाली ऑर्थो पोजीशन पे अटैच हो गया है। Next one is the categories. So types that we have discussed in the previous slides, that from the base of the position of the atom where the migrating group is going to be attached, and on the conditions that how the atom can be detached or reattached on the other side. So these categories are on the base of the migrating ग्रुप, दैट इज़ माइग्रेट टूवर्ड विच टर्मिनेटिंग ग्रुप, जिस ग्रुप की तरफ वो माइग्रेट कर रहा है उसकी बेस पे इसको हमने कैटेगराइज किया हुआ है। रीअरेंजमेंट टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन, एक ही सिस्टम में कोई ग्रुप एक ग्रुप से एक एटम से यानी कि डिटैच होकर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन की तरफ जा सकता है उस सिस्टम के, फिर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन की तरफ जा सकता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन की तरफ जा सकता है, नाइट्रोजन की तरफ जा सकता है, और सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट जो कि मैंने आपको अभी बताया। अब इन्हीं कैटेगरीज की फर्दर एग्जांपल्स हैं रीअरेंजमेंट टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन, जिसमें वैगनर मेयरविन रीअरेंजमेंट, पिनाकोल टू बिनाकोलोन, बेंजिल बेंजिलिक एसिड, वुल्फ रीअरेंजमेंट, डाइनॉन टू फिनोल रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन, बैकमैन, हॉफमैन, कर्टियस, लोजन एंड शिडमैन, रीअरेंजमेंट टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन, बायर-विलिगर, क्यूमीन, हाइड्रोपेरोक्साइड फिनोल एंड डेकन रिएक्शन। इन जो है वो रीअरेंजमेंट्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे इन द अपकमिंग लेक्चर्स। इनमें से एक जो है हमारी हॉफमैन रीअरेंजमेंट, सॉरी बायर-विलिगर रीअरेंजमेंट या बायर-विलिगर ऑक्सीडेशन, आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड ऑन द चैनल, यू कैन सी, और आप जो है वो वीडियोस में जाके देख सकते हैं। और यहाँ से ये जो बाकी की रीअरेंजमेंट्स हैं ये हम अपकमिंग लेक्चर्स में वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर कंसंट्रेशन।